So, hello everyone. So, now we are into the 11th lecture of this series of the basic signal system, and we are into unit 2, and we have discussed in the last lecture we have discussed what are analogous system, and we know that there are two methods through which we can represent a mechanical system into an electrical system, that is force voltage and force FV and FI system. So, now with the help of your numerical we will see how we can solve how we can represent a given mechanical system with the help of equation into a given electrical signals, okay, or given electrical equation. So, let us see. So, what was the conclusion from last lecture? What was the method we were following to draw that equivalent? First was we will have to have a reference line, and then one thing more was like number of displacement, corresponding displacement we have to select the node, or we can say corresponding to the displacement or corresponding to the mass. As many number of mass, suppose in a mechanical system we are having two masses. In a mechanical system, if you have two masses in a corresponding to in a mechanical system, if you have m1 and m2 and there is displacement x1 x2. So, we can have number of as many number of masses, that many number of nodes, or we can say as many number of displacement, that many number of nodes. Okay. So, this is the second point. Then what we will do, we will connect the masses between the reference and the node point. There will not be anything between the masses and the node. Mass will be connected directly between the node and the reference line. Fourth is connect another element of the system to the node, and finally, we will apply the nodal analysis or write the system equation. Okay. So, so let us take some example and we will do it. Okay. So, suppose we want to draw a system which is having there is spring, this is K1, this is basically F1, here we have displacement, this is displaced by x2, this is we have x1, and this is basically K12. Why you are writing K12? Because it is connected between 1 and 2, and the force is applied on this mass. So, suppose this is the given problem, this is a given mechanical system, and we are required to find the electrical equivalent, means FV analogy and FI analogy. So, see how we will do. See, the best method to solve this type of problem is first draw the mechanical equivalent system. Draw what? Mechanical equivalent circuit. Once you draw it, then it is very easy to, by seeing that circuit you can easily convert that circuit into a FV or FI analogy. So, let us follow the rules what we have decided. We will mark first, we will mark a reference line. So, let it be this is the reference line, then there will be two nodes, because number of this, how many number of nodes, as there are two masses, we will have two nodes. So, we will have two nodes, let this be one node, this will be another node. And next point was the masses will be connected directly between the between node and the reference. Okay. So, we will have this is M1, this is M2. Also, there is one spring connected between K12, because it is connected between node 1 and 2. And now, so on M2 only this spring connected, and whereas in M1 there is one damper, one more spring. So, how we will connect, as it is in parallel, so we will connect like this, and similarly we will connect one damper as well. This is B, this is K1, and also
there is one force acting on M1. So, this is the two nodes. So, if you now verify, see on M1 how many forces are acting? F1, 1, 2, 3. So, on this node how many forces are acting? 1, 2, 1, 2 and 3. Again on M2 there is only one force, that is spring force between the two masses. This is only one force, and this is the node is marked as the displacement point. So, M2 is displaced by x2, so x2, M1 is displaced by x1, so x1. So, this is basically the mechanical equivalent circuit diagram. Now, suppose once we got the mechanical equivalent system, it will be very easy for us to draw the force voltage analogy or current voltage analogy. Okay. So, how we will do? See, also if you want to write the equation. So, F1 is equal to here M1 d x1 square by dt square plus k1 x1 plus b d x1 by dt. This was for what? Mass M1. For M2 there is no force on M2, so force is equal to 0, and M2 also one more thing, k1 x1 plus k12 x1 minus x2. For second mass, so this is 1, this is 2, there is no forces on acting on mass M2. So, M2 displacement is dx2 square by dt square plus only one spring force k12, that is x2 minus x1. So, these two are the equation for what? Mechanical system. Now, suppose we want, so let us draw FV analogy first. Let us draw FV analogy first. So, if you write FV analogy for this, how will write? Voltage, because in FV analogy force is replaced by voltage, M is replaced by L di by dt plus, no, you can do one thing, let us draw the circuit first, then we can easily write the equation. Let us draw the electrical equivalent. For every draw electrical equivalent circuit. Also we know that FV analog is what is loop analysis. So, how we will do? First of all we will write a voltage, because force will be replaced by a voltage. Then there will be two masses. Also we know that when we draw FB, we convert all the parallel component into series and series component into parallel. So, M1, so this will be L1, then we have K1 will be replaced by, let us read this, see now as these three component M, K, B is in parallel. So, here it will be in series. So, R, L, R and C. This was for M1, this will be for what? This is for M1. Then again other node what will be? M will be replaced by what? There is one K12, so is capacitor, as it is in what series, so it will be in parallel, and again the mass which is in series,
पैरेलल so it converted in series. सीरीज में कर दिया इसको, सीरीज के लिए या पैरेलल के लिए बात एक ही है क्योंकि ये एक ही लूप है। तो R1 L1 C1 C12 and here we have L2। तो ये क्या है बेसिकली, और यहाँ पे क्या फ्लो करेगा, here will have IT। तो अगर हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, मैकेनिकल सिस्टम पर ड्रॉ किया, उससे क्या बना लिया, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बना लिया। अब हमें क्या करना हो, अगर हमें उसका इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमें इक्वेशन लिखना हो तो इक्वेशन लिखना आसान हो गया, हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं VT इक्वल टू L1 di/dt प्लस I1 और IT इंटू R प्लस C1 1/c I/dt। तो हमने क्या किया, एक तो प्रोसीजर क्या है, सबसे आसान तरीका, मैकेनिकल सिस्टम दिया था, हमने मैकेनिकल सिस्टम का एक डायग्राम दिया था, हमने उसे मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, और हमें पता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट अगर हम उस मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट को फोर्स वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो सारे सीरीज पैरेलल वाले कंपोनेंट सीरीज में, सीरीज वाले पैरेलल में, और विथ देयर इक्विवेलेंट रिप्लेसमेंट, जैसे M1 का रिप्लेसमेंट क्या होता है L, इम्पीडेंस का R, कैपेसिटर का यहाँ पे K का रिप्लेसमेंट कैपेसिटर, तो हमने ये कर दिया। सिमिलरली इस लूप के लिए लिखें तो यहाँ पे क्या है, इसमें करंट क्या है, 0 इक्वल टू L2 dit/dt dit/dt। यहाँ पे I1 करंट मान लेते हैं, यहाँ पे I2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे I1 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 और यहाँ पे ये I2 प्लस क्या हो जाएगा, इंडक्टर है तो बेसिकली इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए क्या लिखेंगे, 1/C12 I1 I2 माइनस I1 dt। तो ये क्या हो गया, बेसिकली इक्वेशन हो गया किसका, FP एनालॉगस का इक्वेशन और ये डायग्राम। अब सिमिलरली अगर हमें किसके लिखना हो, इससे I का एनालॉगस बनाना हो, अगर हमें इससे I का एनालॉगस बनाना हो तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो सिस्टम हमारा कैसे बना हुआ था, अभी हमने जो बनाया था, में एक फोर्स था यहाँ पे, एक मास, यहाँ पे एक स्प्रिंग, यहाँ एक टेम्पर, यहाँ पे फिर यहाँ पे एक मास M2 M1, यहाँ पे K12 K1, यहाँ पे B1 M2, ये हो गया था आपका नोड, X2 नोड, और यहाँ पे X1 नोड। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इससे क्या बनाना है, फोर्स करंट एनालॉगी। तो फोर्स वोल्टेज हम क्या करते थे, सारे जो पैरेलल में कंपोनेंट को सीरीज में किया, सीरीज को पैरेलल में किया विद देयर इक्विवेलेंट पैरामीटर। इसमें क्या है, फोर्स करंट एनालॉग में यू हैव टू डायरेक्टली ड्रॉ द सर्किट इनटू द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट विदाउट रिप्लेसिंग द सीरीज इन पैरेलल, पैरेलल इन सीरीज। जैसे ये है वैसे ही बना दीजिए, बस उसके इक्विवेलेंट को रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे हम अगर बनाएं तो F किससे रिप्लेस हो जाएगा, ना फोर्स करंट एनालॉगी में क्या होगा, I इज बेसिकली फोर्स रिप्लेस बाय करंट, देन मास को कैसे करेंगे, तो अगर हम आप देखिए टेबल, तो Fi में क्या होता है, उससे किससे रिप्लेस होता है, मास का इक्विवेलेंट क्या है C, तो यहाँ पे C हो गया, देन वी हैव 1, यहाँ पे K1 है तो इसको हम M1 है तो इसको हम C1, यहाँ पे R1
एंड देन यहाँ पे L1। ठीक, ये हो गया किसके लिए, इस नोड के लिए। सिमिलरली दूसरे नोड की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर एक इंडक्टर और यहाँ पे एक मास के लिए फिर एक कैपेसिटर। ये क्या हो जाएगा C2, ये हो जाएगा L12 L1 C1 R1। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी L12 हो गया। और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा V2 और यहाँ पे V1, यहाँ क्या है V1। अब करंट है I। तो हम क्या करें, अब हम क्या करें, इससे इक्वेशन लिख लें। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, I इक्वल टू C1 dV1 बाई dt प्लस R का क्या हो जाएगा V1 बाई R1 और यहाँ पे 1 बाई L V1 dt। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया V1 नोड के लिए या फिर V1 के लिए, ये फॉर V1। और अगर हम इसके लिखना चाहें, सॉरी एक और है इसमें, एक और चीज़ छूट रही है, इसके लिए ये तीनों हो गए, इस नोड पे भी कनेक्टेड है। तो इसके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/L12 V1 माइनस V2 का dt। ये क्या हो जाएगा हमारा V1 इस नोड के लिए हो गया। अब हम किसके लिखना चाहते हैं, इस नोड के लिए। तो इस नोड पे क्या है, कोई भी फोर्स नहीं है, देन हियर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखे तो नोड पे 0, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है तो 0 इक्वल टू C2 के लिए क्या लिखेंगे C2, ये हो गया करंट, करंट थ्रू व्हाट कैपेसिटर प्लस ये करंट और ये करंट। इस पॉइंट पे करंट क्या क्या था, दिस करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस करंट। ये 4 तरह करंट थे, 1 2 3 4 तरह करंट थे। और यहाँ पे क्या है, 2 ही तरह करंट हैं। तो और इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, सो इक्वल टू प्लस L12 X2 माइनस X1 है, सॉरी तो मैंने इलेक्ट्रिकल लिख दिया, मैकेनिकल लिख दिया। इलेक्ट्रिकल लिखने के लिए वन अपॉन L12 इंटीग्रेशन V2 माइनस V1 का dt। तो ये इक्वेशन सेकेंड नोड के लिए हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट नोड के लिए हो गया। ठीक, तो ये क्या है, बेसिकली एक एनालॉगी हो गई फोर्स वोल्टेज की, किसके लिए, एक प्रॉब्लम के लिए, समझ गए। अब सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है, ये है एक सिस्टम बना हुआ है, इसमें क्या है 2 मासेज हैं, फिर 2 डिस्प्लेसमेंट हो गए। अब हमें इसके लिए क्या बनाना है, मैकेनिकल सिस्टम बनाना है। और तो हमने क्या मेथड चूज़ किया, हम पहले क्या बनाएंगे, पहले उसके करस्पॉन्डिंग मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। एक बार मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, उससे हम क्या करेंगे, पहले FB का सर्किट डायग्राम बना लेंगे और सर्किट डायग्राम देख के हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे। सी इट इज़ ईजी टू राइट इक्वेशन आफ्टर सीइंग द सर्किट डायग्राम एज कंपेयर टू writing the equation and then drawing the circuit diagram from that given equation। ओके, तो इसके लिए चलिए पहले हम क्या बनाएं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट। तो कैसे बनेगा, पहले सबसे पहले क्या होगा, पहले 2 नोड ले लेते हैं। एक नोड किसके करस्पॉन्डिंग, M1 करस्पॉन्डिंग यहाँ पे X1 करस्पॉन्डिंग एक नोड ले लिया, या दूसरा नोड किससे करस्पॉन्डिंग ले लिया, M2 करस्पॉन्डिंग टू X2। सो नोड कितने होंगे,
जितने मासेस उतने नोड, या फिर जितने डिस्प्लेसमेंट उतने नोड। अच्छा, फोर्स किस पे लग रहा है? M1 पे। तो M1 पे क्या किया, एक M1 पे क्या करें, एक फोर्स लगा दें। M1 पे फोर्स लग गया। और M1 पे क्या है, एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, मीन्स फ्रिक्शन कंपोनेंट है, तो क्या लगा हुआ है, एक डैम्पर भी लगा हुआ है, मैं डैम्पर लगा दिया। और क्या है, दो चीज़ है, इसके अलावा क्या है, और इंडिपेंडेंटली M1 पे सिर्फ ये दो फोर्सलेस लगे हुए हैं, M1 है, ये है। अच्छा, फिर ये क्या है, ये पार्ट क्या है, ये M1 M2 के बीच में है, तो कहाँ जाएगा, दोनों नोड के बीच में आएगा, दोनों नोड के बीच में आएगा, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, हियर विल कनेक्ट एंड ये और ये, तो हो जाएगा K12 एंड यहाँ B12। ये क्या हो गया, ये हमने दो किस से लगा दिए, दोनों नोड के बीच में लगा दिए। थर्ड पे क्या होगा, ये हो गया। अब क्या बचा, M2 पे आए, तो M2 पे ये लगा हुआ है, सिमिलरली हमें क्या लगाएंगे, एक डैम्पर लगा देंगे और एक स्प्रिंग लगा देंगे। इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज में क्या लग जाएगा, K2। तो ये बेसिकली ये क्या था, हमारा रेफरेंस, ये क्या हो गया, हमारा रेफरेंस। तो अब हमें क्या करना है, ये हमने क्या बना लिया, हमने एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। अब हमें अगर हम याद करें तो आसान क्या था, अगर हमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम से हमें क्या बनाना हो, एफवी बनाना हो। अगर हम एफवी बनाएं तो क्या करना पड़ेगा, सारे कंपोनेंट को सीरीज वाले को पैरेलल को सीरीज करना पड़ेगा। और अगर हम इलेक्ट्रिकल बनाए, अगर हम एफआई बनाएं तो क्या करना होगा, कनेक्शन वही रहेंगे, सीरीज में पैरेलल में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बनाएं, एफवी बनाएं, क्योंकि मैंने बताया पहले डायग्राम बना के उसको बनाना आसान है। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करें। तो जो पैरेलल में है M2, और यहाँ पे क्या था, M2 ये था आपका K2, और यहाँ पे B2, ये B1। तो M2 K2 B2 किस में आ जाएगा, यहाँ पैरेलल में थे, तो यहाँ पे पहले शुरू करते हैं उस साइड से। तो यहाँ पे क्या लगा है, FI है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा सबसे पहले वोल्टेज, ये X1 नोड है, ठीक। X, और यहाँ पे B1 M1 किस में है, पैरेलल में है, तो उसको हम किस में कनेक्ट कर दें, सीरीज में, क्योंकि हम एफ भी बना रहे हैं। तो सीरीज में कनेक्ट होगा तो क्या होगा, L M1, ये मास M1 को सीरीज में कर लिया, इसको भी किस में कर दिया, सी, ये हो गया। ठीक, तो फिर क्या किया हमने, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर को लगा दिया, तो रेजिस्टेंस हो गया और ये इंडक्टर हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई, L1, इसकी वैल्यू R1। फिर ये सिस्टम क्या है, तो जो पैरेलल में था सीरीज में लगा दिया। अब ये सीरीज में है तो पैरेलल में लग जाएंगे, सीरीज में तो पैरेलल में जाएंगे, कैसे, ये आ जाएगा हमारा एक रेजिस्टेंस और ये आ जाएगा हमारा एक डैम्पर, हमारा डैम्पर, एक रेजिस्टेंस और स्प्रिंग हो गया। तो स्प्रिंग के लिए क्या होता है इक्विवेलेंट, स्प्रिंग का इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं, C। तो यहाँ पे आएगा हमारा डैम्पर के लिए हमारा क्या आ गया, रेजिस्टेंस, और उसके लिए क्या आ जाएगा, तो ये आएगा C12, एंड यहाँ पे इंडक्टर के लिए R12। अब से चलते किधर, X2 की तरफ चलते हैं, नोड 2 की तरफ चलते हैं। नोड 2 क्या है, नोड 2 यहाँ पे ये है, तीनों सीरीज में है, तीनों पैरेलल में, किस में आ जाएंगे, सीरीज में। सीरीज में क्या क्या जाएगा, एक मास के करस्पॉन्डिंग इंडक्टर, B2 के करस्पॉन्डिंग एक रेजिस्टेंस, और स्प्रिंग के करस्पॉन्डिंग एक कैपेसिटर। C2, R2 और L2, ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी। अब इसी से हमें क्या बनाना हो, फोर्स करंट बनाना हो, कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही कर देंगे। अगर हमें क्या बनाना हो, इक्विवेलेंट बनाना हो किसका, FI का। अगर हमें किसका बनाना हो, FI का बनाना हो, तो FI कैसे बनाएंगे,
सिमिलरली कुछ नहीं करना है आपको, जैसे जैसे वैसे कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे जो भी पार्ट है, अच्छा ये कर सकते हैं या फिर इसको कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान के चलिए ये x1 नोड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे सब, जैसे ये है पैरेलल में, तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे उसको लिया तो R क्या करेंगे, मास अगर इसको ड्रॉ करें, x2 इधर से x1 ड्रॉ करें, तो x1 इसे करस्पॉन्डिंग तीनों चीज़ पैरेलल में, यहाँ पे देखें इसका एनालॉगस क्या होगा, सॉरी पहले ये कर लेते हैं, इसका पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इसका इक्वेशन छूट गया, इसका इक्वेशन लिखें, इसका इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये आपका I1, तो लिखें तो V इक्वल टू L1 d I1 dt प्लस x1 है R1 है, तो I1 इंटू R1 प्लस फिर यहाँ पे एक करंट I1, यहाँ एक करंट गई I और यहाँ एक करंट गई I2, ये हो गया। इससे करस्पॉन्डिंग ये नोड क्या हो गया, V हो गया, ये तीनों वोल्टेज हो गया। इससे करस्पॉन्डिंग लिखना चाहें I1 करस्पॉन्डिंग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पहला हो गया। दूसरा लिखना चाहें इससे करस्पॉन्डिंग लिखें तो क्या हो जाएगा, हाउ वी राइट करंट इन 1/C V dt करंट, और R1 के लिए V1 अपॉन या V अपॉन R12। इसके लिखना चाहें तो क्या होगा, V2 इक्वल टू I2 R2 प्लस L2 di2/dt प्लस इसमें इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया 1/C2 I2 dt। तो ये तीन चीज़ हम कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड यही है, या तो आप पहले मैकेनिकल बना लीजिए, उससे इलेक्ट्रिकल बना लीजिए और इक्वेशन लिख दीजिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे या फिर इसका फोर्स करंट एनालॉगस भी देखेंगे। ओके थैंक यू।